So we are starting with the third session of probability and binomial theorem, probably the last session of binomial theorem and probability. 4 to 5 questions are remaining on probability, rest are binomial theorem. So we'll be covering theory as well for binomial theorem. So first question on the screen, take 2 minutes, give it a try. 5 persons entered a lift on the ground floor of an 8-floor building. Each of them independently and with equal probability can leave the lift at any floor beginning with the first floor. The probability that all 5 persons got out of the lift at a different floor is. Comment your answers A, B, C, D. All of them enter at the ground floor. 8 people enter at ground floor. The numbering of floors starts from 1, 2, 3, goes up to 8. Anyone can leave at any floor. Anyone can leave at any of these floors. There are 5 people. There are 5 people who enter. So all 5 can leave here, all 5 can leave here, all 5 can leave here, all 5 can leave here. The first person has 8 options. Second person has 8 options. Third person has 8 options. So out of these, all the answer should have 8 to the power 5. यही भी आपको clear हो गया? None of the answers is going to match here. There are 8 floors in the building. They are leaving from the first floor. So from first, second, third, fourth, fifth, there will be 8 floors. So 8 to the power 5 should be total possibilities. Because if I say first person is A, he can leave at any of the 8 places. Second person can leave at any of the 8 places. So 8 to the power 5 total ways. I want them to leave at distinct places. So out of these 8, I am going to perform permutation of 5. 5 अलग-अलग लोगों को 5 अलग जगहों पे लीव करना है. Why is there a permutation sign here? क्योंकि अरेंजमेंट मैटर करता है कि A फर्स्ट पे निकला, B सेकंड पे, या B फर्स्ट पे, A सेकंड पे. This will translate into 8 factorial upon 3 factorial upon 8 to the power 5. अभी तक आपका आंसर क्लियर? None of these है. Let us complete these calculations. That is 8 into 7 into 6 upon 8 into 8 to the power 7. So I'll leave it here. 42 upon 8 to the power 7. None of these. There are 8 floors. Anyone can leave at any one of the floors. Try. Ashok has a bag containing 40 cards, numbered with integers 1 to 40. No 2 cards are numbered with the same integer. Likewise, his sister Shilpa has another bag containing only 5 cards, numbered with integers 1 to 5, with no integer repeating. Their mother Latha randomly draws 1 card each from Ashok's and Shilpa's bag and notes down the respective numbers. If Latha divides the number obtained from Ashok's bag by the number obtained from Shilpa's bag, what is the probability that the remainder will not be greater than 2? Remainder will not be greater than 2. So go on.
Try. Ashok has a bag which contains numbers 1, 2, 3 up to 40. Shilpa has a bag which contains numbers 1, 2, 3, 4, 5. Lata takes one number from here, one number from here, and divides both. The remainder should not be greater than 2. So remainder can be either 0 or 1 or 2. The remainder should not be greater than 2. What is the probability of this happening? Answers are in decimals. So go on, give it an honest shot. Comment your answer once you're done. So talking about all possibilities, this lady Latha is going to select one number from here. So she has 40 options. One number from here. So she has 5 options. So total sample space is 200. The sample space is 200. Now, what are the favorable cases? You need to understand when you divide anything by 1, the remainder will always be 0. So I can take any one of these 40 and divide by 1. So there are 40 favorable cases. Remainder will be 0. When I divide anything by 2, remainder can be 0 or 1. So when I divide by 2, remainder can be 0, 1. So I can take any 40 numbers, they are favorable numbers. When I divide anything by 3, remainder can be either 0 or 1 or 2. Up to 2, I'm fine. Remainder can go up to 2. So I have 40 favorable cases. So far 40, 40, 40. When I take y as 4, when I take y as 4, see these numbers are in the form of 4k plus 1. This number is 4k plus 1 or 4k plus 2 or 4k plus 3 or 4k. 4k means no remainder. 4k means 0 remainder. So these numbers I can consider. These numbers I can consider क्योंकि remainder 0 है, 1 है, 2 है. Because there are 40 numbers, there will be 10 numbers of this type, 10 numbers of this type, 10 numbers of this type, and 10 numbers of this type. So first 10, 10, 10, 30 numbers are my favorable numbers if denominator is 4. If the denominator is 5, a number can be of the form 5k plus 1, 5k plus 2, 5k plus 3, 5k plus 4, and the number can be 5k. ये multiple of 5 है. That means 0 remainder. So I'm okay with these 3. Remainder 0, remainder 1, remainder 2. Because the last number is a multiple of 5. सारे बराबर बराबर होंगे. There will be 8 numbers of this kind, 8 numbers of this kind, 8 numbers of this kind. So there are going to be 8, 8, 8, 24 numbers which are favorable to me. So my answer would be addition of these numbers divided by 200. 40, 40, 40, 120, 120 plus 30, 150,
150 plus 24. That is 174. So 174 divided by 200 is your answer. Use a calculator if you need. Verify my calculations as well. 40, 40, 40, 120, 120 plus 30, 150, 150 plus 24, 174 divided by 200, 0.87. That's answer option E. So again, the question is more about numbers and less about probability because you have only to put one ratio there. मेन अंडरस्टैंडिंग चाहिए रिमाइंडर्स. 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर इज ऑलवेज 0. 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर इज 0 और 1. 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर इज 0, 1 और 2. 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर इज आइदर 0, 1, 2 और 3. 5 से डिवाइड कर रिमाइंडर इज आइदर 0, 1, 2, 3 और 4. लकीली ये जो लास्ट नंबर है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एज वेल एज 2 एज वेल एज 3 एज वेल एज 4 एज वेल एज 5. तो ये सारे नंबर बराबर बराबर बटेंगे. ऐसे 10 नंबर्स मिलेंगे आपको. 4k प्लस 0, 4k प्लस 1, 5 के हिसाब से 8 नंबर्स मिलेंगे आपको हर टाइप के. तो फेवरेबल वाले ये काउंट होंगे, फेवरेबल वाले ये काउंट होंगे. कमेंट इफ दिस इज क्लियर. Moving on. Read, try, take 2 minutes. क्या लैंग्वेज है? What is being said? There's a coin of radius 3 centimeters. It is randomly dropped on a square floor of side 10 centimeters. What is the probability the coin will land completely within the tile? In other words, the coin should not cross any edge of the tile, any tile. So in this case, a lot of people try to calculate area of the circle and divide it by the area of the tile. And you will find maybe some online mentors are actually giving that answer. Probability is area of the circle, pi r square divided by area of the tile. This is 3.14 into 9 upon 100. Some mentors are giving this as an answer. ये गलत है. Try to understand कैसे बनेगा ये. When you drop a coin and you want the coin to fall inside the tile, you focus on the center of the coin. Because radius of the coin is 3, I am saying whether you measure it here
or you measure it here, or you measure it here, anywhere you measure, because you do not want the circle to go outside. That means this center must be minimum 3 units inside. This center must be minimum 3 units inside, because if the distance is not 3, the distance is, let us say, 2 units. So circle will come out by 1 unit in this manner. If you want the circle to completely fall within the square, the center of the circle should also, the center of the circle should also fall within this geometric shape. Look at this. What will this geometric shape be? This was 10 unit side. Now this is 3 unit inside. This is 3 unit inside. So how much will remain? 3 unit inside, 3 unit inside. So remaining will be 4 unit. So the center of the circle must fall within this new square of side 4 by 4. The center must fall in 4 by 4. So your favorite probability is area of the new square, 4 by 4 upon area of the old square, 100. For the circle to completely fall inside, this will be the approach. Now if this was not a square but a hexagon, you have to follow same thought process. आपका structure कोई भी हो, if you want the coin to fall inside, you have to bring it down by 3 units. तो आपका 3 unit less करके you will have a new hexagon. तो जो भी इसका साइड होगा, a upon b स्क्वायर के फॉर्म में आपका आंसर आएगा ऑलवेज. क्या अप्रोच था यहाँ पे? द स्क्वायर इज फॉलिंग इन द सर्कल इज फॉलिंग इनसाइड अ स्क्वायर टाइप. सर्कल को अंदर गिरने के लिए उसका जो सेंटर होता है, इट शुड बी इनसाइड अनदर स्क्वायर. और वो जो छोटा स्क्वायर है उसके डायमेंशंस रहेंगे आपके 4 by 4. Comment if this is clear. Confirmation on this. Moving on. Try. If Raman is allowed to throw a dice thrice and he needs a total of 11, in how many ways can he achieve this sum? कितने तरीकों से रमन total 11 ला सकते हैं when he is allowed to throw 3 dice? So in a way it is a question of PNC, but I can convert that in probability and say the addition is 11, find the probability. Try. ऐसा क्वेश्चन देख के what theorem comes to your mind? Take 2 minutes, give it a shot. क्योंकि he is rolling the dice thrice. Let us say पहले वाले का outcome is A, दूसरे का outcome is B, तीसरे का outcome is C. So you are saying A plus B plus C is equal to 11. So it is a question based upon distribution theorem. A plus B plus C is equal to 11. अब क्या conditions लगाने हैं वो आप ध्यान दो. Once you see a question, you should be able to relate it with something you already know.
something you already have done. I have given you the hint. It's a question based upon distribution theorem. Conditions क्या होंगे? Because I'm adding outcomes of three rolls of dice. Minimum has to be 1, and no one can surpass 6. 6 is the upper limit. Upper limit is 6. So how do we solve such questions? पहले तो जो मैंडेटरी है, मिनिमम है 111, वो निकाल लो, बच गया 8. इस 8 को आई एम गिविंग अवे इन 3 places without a restriction. तो हो जाएगा 10c2. How much is 10c2? 10 into 9 upon 2 into 1. So 10c2 is 55. तो 55 से ऊपर तो आंसर नहीं हो सकता हमारा. Now, what is the problem? आपने इनको 1 1 1 दे दिया था. अब मुझे क्या करना है? 6 के बिलो रखना है. Whenever upper limit is given, आप याद करो. This I have taught you. This I have trained you on. मैंने 2 को 1 1 दिया क्योंकि 1 1 मिनिमम है, और मैंने deliberately किसी एक को 7 दे दिया. I am deliberately offering 7 to one of them. ये invalid है. आप क्या 2 को 7 कर सकते हो? No. ऐसा एक ही नंबर होगा जो 7 हो सकता है. तो हमने यहां से 9 निकाल लिया, बच गया 2. अब 2 को कैसे बांटोगे? I am distributing 2 in 3 places without conditions. तो ये हो गया 5 minus 1 4c2. 4c2 कितना होता है? 4 into 3 upon 2 which is 6. अब सुनना, आपने a को 7 assume किया, आप b को भी कर सकते थे, c को भी कर सकते थे. So there are 3 possibilities. There are 3 possibilities जिसमें कोई एक नंबर 6 को क्रॉस कर जाएगा. तो ये 18 केसेस जो हैं, ये 18 केसेस इनवैलिड है. तो your answer should look like total possibilities, which is 55 minus invalid. 55 minus 18, that should be 37. अरे 55 क्यों भाई? 45. 5 into 9, 45. 45 minus 18, 27. There's your answer. ये अपर लिमिट वाला हमने 3 एग्जाम्पल 4 बनाए हैं when covering basic theory of permutations and combinations, especially under distribution theorem. Moving on from this, try. ये आप probably second question आप देख रहे हो, bias वाला.
एक क्वेश्चन आपने बनाया था PNQ की प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स was 0.2, probability of tails was 0.8. यूजुअली प्रोबेबिलिटी क्या होती है हेड्स और टेल्स की? 1/2 1/2. तो ये बायस वाला क्वेश्चन एक बना चुके हो आप पहले, ये नया क्वेश्चन है और थोड़ा एडवांस है, आई मीन फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है. गिव इट अ शॉट. I'll give you 2 to 3 minutes to try. Comment your answers. In a defective 6-phased die with numbers 1 to 6 inscribed, the probability of getting an odd number is twice the probability of getting an even number. Probability of odd is twice the probability of even. Any odd, any even. Find the probability as a percentage of getting a 2-digit prime number on adding 2 successive throws of the die if among the even numbers all are equally likely and same is true for odd numbers. Type your answer as nearest integer. I can assure you मैक्सिमम लोग ये सवाल छोड़ देंगे इसका बायस देख के. ऐसे अप्रोच किया जाता है. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1 होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड 2 होता. Now think over this.
2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 3 हो गई। लीव इट देयर। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, 3 की प्रोबेबिलिटी 2 है, 5 की प्रोबेबिलिटी 2 है, तो प्रोबेबिलिटी 6 हो गई। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 9। 9। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/9। कोई भी इवन नंबर, सिंगल इवन नंबर, और कोई भी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी 2/9। This part most people do not know, they don't understand how to tackle. अब देखो, आप कह रहे हो 2 बार थ्रो करके हमें 2 डिजिट प्राइम नंबर चाहिए, तो केवल एक ही 2 डिजिट प्राइम नंबर है 11 जो बनता है, which can be 6 + 5 और 5 + 6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/9। 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/9। अब इसका ऑर्डर मैं रिवर्स कर देता हूं तो एक और केस बन जाएगा into 2, तो 4/81। अब आपको इसको परसेंटेज में आंसर करना है। व्हाट इज 4/81 into 100? क्लियर दिख रहा है? अगर 4/80 होता तो 5% होता। 4/81 into 100 is 4.938। 4.938। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या लगाओगे आप? 5%। दैट इज योर आंसर। ये जो हमने हैंडल किया ना कि 1 का प्रोबेबिलिटी 2 है, 3 का प्रोबेबिलिटी 2 है, 5 का प्रोबेबिलिटी 2 है, तो टोटल ऑड का प्रोबेबिलिटी इज 6। 2 का प्रोबेबिलिटी 1 है, 4 का प्रोबेबिलिटी 1 है, 6 का प्रोबेबिलिटी 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 3। तो इवन एंड ऑड दो ही आउटकम आते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी बिकम्स 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर बिकम्स 1 out of 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑड नंबर बिकम्स 2 out of 9। हमें क्या चाहिए? इवन, हमें चाहिए ऑड प्राइम चाहिए, हमें 2 डिजिट का प्राइम नंबर चाहिए। तो 2 डिजिट का प्राइम नंबर केवल 11 बनता है, 6 + 5, 5 + 6 से। पहले आपको 6 चाहिए, बाद में आपको 5 चाहिए। into 2 क्यों किया आपने? क्योंकि ये वाला आउटकम भी साथ में काउंट होगा। So if you throw this question at, let us say, 100 people, maybe 5 will be able to answer this accurately, which is the answer also. 5% is the answer as well. Moving on. Information on this. चलो, now we are starting with the theory of binomial. थोड़ा अलग तरह का टॉपिक है। कैट में डायरेक्ट क्वेश्चंस रिसेंटली तो नहीं आए हैं। जो रिसेंट क्वेश्चन मुझे याद है वो इस तरह का कुछ था, a + b + c to the power कुछ 20 लिखा हुआ था, how many terms are there in the expansion of this। बाकी हायर लेवल क्वेश्चन तो कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 200cn is divisible by largest possible prime number। फाइंड दैट प्राइम नंबर। तो उसमें थोड़ा आपको कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए टू हैंडल, तो बाइनोमियल का थोड़ा सा हिंट वहां काम आ जाता है। अदरवाइज कैट में, बट ज़ैट में इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग टू हैव क्वेश्चंस ऑन बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो अगर कभी x + y का स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 आता है, पावर 10 आता है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। हम छोटे एक्सपेंशन जैसे होते हैं, जैसे मैंने कह दिया x + y to the power 1, x + y to the power 2, x + y to the power 3, x + y to the power 4,
ऐसा पावर 6 पावर 7 तक what we do is power 6 power 7 तक what we do is we don't apply binomial, हम उसको Pascal's triangle से बनाते हैं. Pascal's triangle, give me a second. तो मैं आपसे कह रहा था कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है. राइट, 1 1 आउटर वैल्यूज आर 1, बीच में इनको ऐड करो एज अ पेयर, आउटर वैल्यू इज 1 1, इनको ऐड करो पेयर में 3, इनको ऐड करो पेयर में 3, आउटर वैल्यू इज 1 1, इनको ऐड करो पेयर में 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 1 7 21. इतना आपको याद नहीं करना है. एग्जाम में यू कैन क्रिएट दीज नंबर्स ऑन योर ओन. दिस इज कॉल्ड अ पास्कल्स ट्रायंगल. आउटर वैल्यू हमेशा 1 है देखो, और बीच वाली वैल्यू जो है वो पेयर्स में एडिशन है. तो हाउ डज दिस वर्क? दीज आर कोएफिशिएंट. जैसे x प्लस वाई का पावर 1 है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है. x प्लस वाई इज योर आउटकम. यहाँ पे क्या होगा, ये पावर 2x को जाएगी, फिर एक पावर कम होगी x की, y की बढ़ जाएगी, एडिशन इज 2, फिर y स्क्वायर. ये जो है सेकेंड लाइन, ये इसके कोएफिशिएंट्स है 1 2 1. ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया. आपको ये चाहिए, एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट पावर पहले वेरिएबल को जाएगी, फिर एक एक करके पावर कम होगी एक्स की, पावर विल स्टार्ट टू डिक्लाइन, पावर ऑफ एक्स विल बिकम स्क्वायर, फिर वाई, फिर एक्स का पावर एक और कम होगा, वाई का बढ़ेगा. सी एडिशन ऑफ पावर विल ऑलवेज बी 3. फिर एक्स का पावर और कम होगा, वाई का +1 हो जाएगा. सो दीज आर द कोएफिशिएंट्स. ये जो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे, ये कोएफिशिएंट है 1 3 3 1. अब मुझे कैसे पता पड़ता है कोएफिशिएंट है? लैंग्वेज सुनो. स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म हो चाहे लास्ट से सेकेंड टर्म हो, इट इज ऑलवेज द पावर. स्टार्टिंग या लास्ट से सेकेंड टर्म इज ऑलवेज द पावर. जैसे पावर 4 है, ऐसा होगा x की पावर 4, x क्यूब y, x स्क्वायर y स्क्वायर, x y क्यूब y टू द पावर 4. तो ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं. पहले में 1 4 6 4 1. ये कैसा होगा? पावर 7 पावर 6y. ये सब याद नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है. 2 बार रिपीट करोगे, you will be able to keep up with all of this. ये कोएफिशिएंट है. तो आपको मैं 2-3 पैटर्न्स और दिखाऊंगा. फर्स्ट आई वुड प्रेफर आप इसको लिख लो. एक अच्छा ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दिया, सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंडिंग इज ऑलवेज द पावर. तो फर्स्ट के 2 टर्म्स और आखिरी के 2 टर्म्स तो आप कभी प्रिडिक्ट कर सकते. यू कैन एनी डे एनी टाइम प्रिडिक्ट द फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 2 टर्म्स. 2-3 ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पर पावर 2 है, एक्सपेंशन में 3 टर्म्स है. पावर 3 है, एक्सपेंशन में 4 टर्म्स है. पावर 4 है, एक्सपेंशन में आप देखो 5 टर्म्स है. कभी भी x प्लस वाई टू द पावर n हो जाएगा. इन द एक्सपेंशन यू विल हैव n प्लस 1 टर्म्स. पहला ऑब्जर्वेशन. दूसरा,
बेस्ड बेटा प्रोबेबिलिटी में आता है, वी हैव कवर्ड दैट थ्रू एग्जांपल्स। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखो, जो मिडिल नंबर्स हैं, मिडिल नंबर्स वो हमेशा मैक्सिमम है। तो कभी भी आपको अगर बोला जाए कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट चाहिए मैक्सिमम, तो हमेशा मिडिल टर्म को देखना है, मिडिल टर्म। वो इवन पावर है, ऑड पावर हम जनरलाइज कर लेंगे, मगअप मत करो आप, लिखो इन चीजों को, राइट दिस डाउन। पहला ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1। दूसरा ऑब्जर्वेशन, मिडिल टर्म इज द मैक्सिमम टर्म फॉर कोएफिशिएंट्स। अब अगर यहाँ माइनस साइन आ जाए तो यू ऑल नो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। अगर यहाँ माइनस आ जाए, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, यहाँ माइनस आ जाए, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अगर अंदर माइनस साइन आ जाए सो इट इज अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। ये x का पावर 4 पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। टेक योर टाइम, राइट दिस डाउन। ये जनरल अप्रोच, फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं मैं आपको, अप टू पावर 7 पावर 8 वी गो विद दीज अप्रोचेस। कमेंट डन। अब मैं आपको बताता हूं मिडिल टर्म कैसे और कौन सी निकालेंगे। अगर आपका n जो है, n इज इवन, जैसे ये आपका n का पावर x प्लस वाई का पावर 4 है, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। तो जब n इवन होगा तो आपका मिडिल टर्म होगा n प्लस 2 अपॉन 2, दैट इज द मिडिल टर्म। अगर आपका n ऑड हो जाए, जैसे आप ये देखो यहाँ पर पावर 5 है, तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म दोनों वैलिड है। जब n ऑड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा t n+1/2 और t n+3/2। तो ये मिडिल टर्म्स होते हैं। देखो इतना सब एक दिन में नहीं याद होगा, प्रोबेबली आपको रिपीट करना पड़ेगा इन चीजों को कई बार टू कीप अप विद दिस। अब मैं जनरल फॉर्मूला देके ये पढ़ाऊंगा तो आपसे नहीं हो, बिकॉज यू आर लुकिंग एट अ सेट ऑफ सेवन आई से पावर्स। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे अगर पावर 7 हो जाए तो मैं पावर 7 हो जाए तो मैं कह रहा हूँ 7+1 8/2। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चौथा टर्म 7+3/2 10/2 5, तो पांचवा टर्म, चौथा और पांचवा टर्म बोथ आर मैक्सिमम। अगर n 6 हो जाए तो 6+2 8/2 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चौथा टर्म इज द मैक्सिमम टर्म। लिख लो एंड वी विल मूव ऑन फ्रॉम दिस। और ऑब्जर्वेशन देखो, अगर आप स्टार्टिंग से देखो और एंडिंग से देखो, द एक्सपेंशन टर्म्स आर इक्वल। ये अभी बाइनोमियल में काम आएगा मुझे। कॉपी दिस डाउन, कमेंट डाउन।
इजी स्टफ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फॉर्मूला बेस्ड एक्सपेंशन। अभी कई बार ऐसा होता है कि पावर 20 30 होती है, उसमें से कोई स्पेसिफिक टर्म लगता है। आई विल स्टार्ट विद द एक्सपेंशन। अब ये बार बार काम आएगा मुझे, आई नीड टू गिव यू कपल ऑफ रिजल्ट्स, तो बार बार मुझे स्क्रीन क्लियर करना पड़ेगा, तो अब साथ में लिखते जाना, डन हुआ कि नहीं बताते जाना। x प्लस वाई टू द पावर n, x माइनस वाई टू द पावर n। देखो, दिस इज n कॉम्बिनेशन 0 x का पावर n, n कॉम्बिनेशन 1 x का पावर n माइनस 1 y का पावर 1, nc2 x का पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, nc3 x का पावर n माइनस 3 y क्यूब, and so on. आखिरी टर्म will appear to be ncn y to the power n। यहाँ कैसे दिखेगा, nc0 x का पावर n माइनस nc1 x का पावर n माइनस 1 y का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, अगला माइनस आएगा। कैसे याद करना, आई विल टीच यू, इसलिए मैंने बीच में स्पेस छोड़ा है, डोंट पैनिक। सर इतना बड़ा कैसे याद करेंगे, हो जाएगा, डोंट पैनिक। nc3 x का पावर n माइनस 3 y क्यूब प्लस, अब आखिरी में प्लस है कि माइनस डिपेंड्स अपॉन n। अगर n 6 है तो ये अलग होगा, n अगर 5 है तो ये अलग होगा, ncn y की पावर n। अब देखना, ये आपका पहला टर्म है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में 0 है, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म। तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर r यूज नहीं करते, बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। यू फोकस ऑन दिस साइड, यहाँ पर 3 है, देखो ऐसा लिखा है n कॉम्बिनेशन r, जो नीचे r लिखा है, कैन आई से दैट इज द पावर ऑफ सेकेंड वेरिएबल। ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकेंड वेरिएबल है, तो जो नीचे कॉम्बिनेशन में लिखा है दैट इज पावर ऑफ द सेकेंड वेरिएबल। कॉम्बिनेशन के नीचे जो r लिखा है दैट इज पावर ऑफ द सेकेंड वेरिएबल। अब ये देखो, यहां पर हमेशा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस x के ऊपर है, इन दोनों का डिफरेंस 2 और 3, 2 n और 2 का डिफरेंस किसके ऊपर है, x के ऊपर में है। सो हियर पहले वाले का जो पावर है इट इज ऑलवेज द डिफरेंस ऑफ n एंड r। अब ये कौन सा टर्म है, देखो नीचे 3 है तो टर्म 4 है, नीचे 2 है तो टर्म 3 है, नीचे r है तो टर्म r प्लस 1 होगा। सर ये सब क्या कर रहे हो आप, देखो कभी किसी क्वेश्चन में यू नीड लेट अस से 10th टर्म, अगर आपको 10th टर्म चाहिए तो ये आ जाएगा nc9, यहाँ 10 है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, ये जो पावर है 9 ये y की पावर हो जाएगी और x की पावर हो जाएगी n-9। ये है बेटा बाइनोमियल जनरल टर्म। अब ये प्लस माइनस में क्या खेल है, बस छोटा सा डिफरेंस है, अगर आपको tr+1 चाहिए तो वो होता है -1 की पावर, यहाँ देखो ये पावर r है, ये r 0, -1 की पावर 0 1 है, ये 1 है, -1 की पावर 1 माइनस, -1 की पावर 2 प्लस, तो ये r है ऐसा, -1 की पावर r। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट रिपीट करके हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन r, y की पावर r और x की पावर n-r। दिस इज यूनिवर्सल बाइनोमियल जनरल टर्म। आप अब मुझसे अगर कहोगे कि सर इसी में मेरे पास x माइनस वाई की पावर लेट अस से 20 है, आप मुझे 9th टर्म निकाल के बताओ। अगर ये 9th टर्म है तो कॉम्बिनेशन के नीचे क्या आएगा, 8 इज अ इवन नंबर, तो -1 के ऊपर में 8 आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, x की पावर 12 y की पावर 8। तो बाइनोमियल का लोगों ने फालतू हाइप बना रखा है, अननेसेसरी लोग डरते हैं। यू हैव द अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूले किधर से आए, हाउ डू दे वर्क। अब क्वेश्चंस बनेंगे आपसे,
लिखो इनको, take 3 to 5 minutes, take your time, comment done. Done, comment. We are moving on. तो ये आपने जनरल टर्म्स देखे. अब मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ. आई एम रिमूविंग सम ऑफ द इंफॉर्मेशन. अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं. एडिशन ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना है आपको. एडिशन ऑफ कोएफिशिएंट्स किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल्स गिवन है आपको. एडिशन ऑफ कोएफिशिएंट. देखो मैं केवल चाहता हूं कि ये चीजें ऐड हो, ये बाकी वेरिएबल सारे गायब हो जाए. तो मुझे केवल ये करना है. x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर देना. तो ये हो जाएगा nc0, ये हो जाएगा nc1, ये हो जाएगा nc2, nc3,
NCN, क्योंकि आपने x और y को 1 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 का पावर n। तो आप जो इससे पहले यूज कर रहे थे सिलेक्शन ऑफ 0 to all, 0 to all, वहां पर आप ये यूज कर रहे थे 2 to the power n। तो बाइनोमियल से भी डिराइव किया जा सकता है, व्हेनेवर यू वांट एडिशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब एक और अंडरस्टैंडिंग कि कोएफिशिएंट बराबर होते हैं, देखो स्टार्टिंग से और एंडिंग से कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। तो कभी भी अगर आपसे आधे कोएफिशिएंट मांगे, हाफ ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स, अभी n इवन है ऑड है वो सब बाद में देखेंगे, कभी भी आपको हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट्स चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड, ये 2 की पावर n-1 होता है इनका एडिशन, क्योंकि आधा कर दोगे ना इसको स्टार्टिंग से एंड तक, ये बीच में देखो आप स्टार्टिंग के नंबर आखिरी के नंबर बराबर हैं तो ये हाफ हो जाएंगे। अभी सिमिलर ऑब्जर्वेशन इफ यू सी इन दिस पार्ट, यहाँ पर अगर आप देखो मैं अगर x इज इक्वल टू y कर दूं, इफ आई मेक x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, मैंने x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 कर दिया तो ये 0 बन जाएगा, दिस इज 0। ये किसके बराबर होगा, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4, ये चलता जाएगा। अभी आखिरी वाला प्लस है कि माइनस, दैट डिपेंड्स अपॉन n। तो आखिरी वाला मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, अदरवाइज आप देखो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, ये सारे किसके बराबर होंगे, nc1 nc3 nc5, ये आपस में बराबर है। अगर सबका एडिशन 2 का पावर n है, आपने इवन वाले अलग कर लिए ऑड वाले अलग कर लिए, तो दोनों का एडिशन 2 की पावर n-1 होता है। ये एप्लीकेशन बाइनोमियल से आता है, 2 की पावर n-1। ये क्वेश्चन भी आपने अर्लियर पीएनसी में किया हुआ है। कहीं पर 2n+1 प्राइजेज हैं, 2n+1 प्राइजेज हैं, उनको हमें n स्टूडेंट्स में बांटना है, टोटल वेज आर 63, टोटल वेज आर 63, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ n, ये आपने बना रखा है इस तरह का। अभी फिलहाल लिखो इनको, लेट मी नो यू हैव टेकन केयर ऑफ दिस। What are we covering here? Properties of binomial theorem. चलो, moving on. तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे सारे हो गए, बस मैं आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा दूं। आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, या कभी ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप ये देखो यहाँ पे, आपको ये समझ में आ रहा है कि x और y की पावर का एडिशन इज 2। अब पावर जब 3 है तो आपको दिख रहा है 2 + 1 is 3, 1 + 2 is 3, 3 + 1 is 4, 2 + 2 is 4, 1 + 3 is also 4। तो ये बेसिकली जो पावर है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो x और y में, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो x और y में। तो आप 20 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो a के पावर में, b के पावर में और c के पावर में।
तो 20 को जैसे इसका पावर x है, इसका पावर y और इसका पावर z, आप x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 बना रहे हो। तो 20 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 जगह में, तो ये फॉर्मूला याद है आपको, ऑब्जेक्ट प्लस ग्रुप -1, combination group -1, 20 is 2c2, which is 22 into 21 upon 2 into 1, cancelled, which is 231. अभी आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। बेसिकली आप ये 15 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 4 जगह में, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, मान लो 15 है, तो 15 प्लस 4 -1 कॉम्बिनेशन 4 -1, which is 18c3. So 18, 17, 16 upon 3, 2, 1, ये आपका आंसर है। कैंसिल 3, 51 into 16, ये आपका आंसर है। इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, बहुत सारे टर्म्स होंगे इसमें। नंबर ऑफ टर्म्स आर 51 into 16, 51 into 10, 510, 51 into 6, 306। तो बेटा इसमें 816 टर्म्स होंगे। अब ये मत कहना सर एक्सपैंड करके दिखा दो, सर से ना हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चन एक दो बार कैट में देखे गए हैं, सो आई वांट यू टू लर्न दिस। यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर। अब थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत ट्विस्ट वी कैन डू इन द क्वेश्चन। बोल देंगे कि ए का पावर ऑड है या बी का पावर इवन है, तो यू हैव सीन ऑल दीज वेरिएशंस। डन, चलो। तो बेसिक थ्योरी ऑफ बाइनोमियल इज क्लियर। अभी ऐसे क्वेश्चंस में 7th टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, जस्ट पेन चलाने वाला काम है। मैं चाहता हूँ केवल इसको बना दो। कैन यू फाइंड द 7th टर्म? 7th टर्म कैसा होगा और क्या होगा? तो जिस ऑर्डर में लिखा है ना, उसमें ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है। आप उल्टा भी कर दोगे तो सीक्वेंस चेंज नहीं होता, लेकिन 7th टर्म बदल जाएगा बेटा, 7th टर्म अलग हो जाएगा। ऐसा अगर दिया आपको 7th टर्म चाहिए, तो यहाँ 7 है, तो कॉम्बिनेशन के नीचे 6 होगा और ऊपर पावर में 10 होगा। तो ये जो 6 है, ये y की पावर है, और इनमें कितना गैप है? 10 और 6 में कितना गैप है? 4। ये तो what you have now on the screen is the 7th term। बस ये प्रैक्टिस करवाना था मुझे आपसे। I want you guys to observe how to pick 7th term। इसमें अगर कोई मुझसे कह दे 7th term निकाल के दो भाई, तो T7। सेकेंड पोजीशन में x है, तो क्या होगा? देखो 10c6, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 6, ये 6 क्या होगा? x का पावर होगा। अब 1 का तो आप कोई पावर लगा दो, 1 तो डज नॉट चेंज, तो योर 7th टर्म इज 10c6 into x to the power 6। ये देखो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब ऐसे कई सारे टर्म्स हैं। अब थोड़ा टीडियस है इसमें, 7th टर्म कैसे निकालेंगे। तो ऐसा कोई 7th टर्म इसमें नहीं कि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। ये तो आपने अभी निकाल दिया, ये आपने x प्लस वाई का पावर 10 अभी निकाल दिया, दिस इज डन। इसमें 7th टर्म हो नहीं सकता, इसको मैं मान लेता हूँ, लेट अस से इसको मैंने मान लिया अपना सेकेंड वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा? T7 will look like 10c6, और ये जो 6 होगा ये z का पावर होगा, और x और y को मैंने सिंगल वेरिएबल मान लिया, कंबाइन मान लिया, टुगेदर मान लिया, तो ये 4 हो जाएगा। ये आपका T7 है, टेंटेटिवली ये आपका T7।
का सेवंथ टर्म बड़ा इजी हो जाएगा बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल आपको पता है. Give it a try. Take a minute or so. What is the seventh term of this expansion? इसमें ये फर्स्ट वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल ये है. आपको सेवंथ टर्म चाहिए. 10 कॉम्बिनेशन 6 आएगा. ये 6 कहाँ जाएगा? 2/x की पावर में जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? पावर 4 आएगा. थोड़ा रीअरेंज अगर कर सकते हो कर दो. 10 कॉम्बिनेशन 6. देखो ये 2 का पावर 4 और ये 2 का पावर 6 मीन्स 2 का पावर 10. यहाँ x का पावर 4 है और x का पावर 6 है. नीचे ज्यादा पावर है तो नीचे कितना ज्यादा है? 2. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10c6 इंटू 2 to the power 10 इंटू 1/x स्क्वायर. ये आपका है सेवंथ टर्म. टेक योर टाइम, ऑब्जर्व, लर्न. Moving on. Which term has highest coefficient for each of these expansions? कौन सी टर्म का कोएफिशिएंट हाईएस्ट होगा? क्योंकि what is n here? n is a odd number. तो आपका होगा t, क्योंकि ये 13, ऐसा मान लो ये 13 है तो टोटल 14 टर्म्स आएंगे. 14 टर्म्स बीच से अगर कट कर दोगे तो यहाँ सेवंथ और यहाँ सिक्स टर्म होंगे. तो सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म दोनों के कोएफिशिएंट बराबर आएंगे आपके. टोटल 14 टर्म्स होंगे आपके पास. तो सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म दोनों कोएफिशिएंट बराबर आएंगे आपके. सेवंथ और एट्थ का आना चाहिए ना. सेवंथ और एट्थ का कोएफिशिएंट बराबर आएगा. मैंने क्या कहा था आपसे? व्हेन n इज ऑड तो t n+1/2 सेवंथ टर्म, t n+3/2. तो बेटा सेवंथ और एथ टर्म कोएफिशिएंट बराबर है. मैं अभी तुरंत प्रूव करता हूँ. आपके लिए देखो ये 7 है तो क्या आएगा? 13c 6 आएगा कोएफिशिएंट. ये 8 है तो क्या आएगा? 13c 7 आएगा. तो आपको ये याद है NCR और NCN-R बराबर होते हैं. 13c6 and 13c7 both will be equal. वही देखो कॉम्बिनेशन में 6 और 7 है. टर्म तो एक आगे होगी ना, 7 and 8 टर्म होगी ना. अब यहाँ पर पावर क्या है? 20. जब आपके पास टर्म क्या होती है? ऑड. जब ये ऑड टर्म होती है तो क्या लिखते हैं अपन? कौन सी टर्म होती है? 20 + 2/2. तो आपकी जो टर्म होगी वो होगी टर्म 11. और टर्म 11 क्या होगी? 20c10
x अपॉन y टू द पावर 10 y अपॉन x टू द पावर 10, तो ये कट जाएगा, तो सीधा सीधा आपकी कोएफिशिएंट आएगी 20c10। यही चाहिए आपको, तो कोएफिशिएंट चाहिए, दैट इज योर आंसर। टेक 2 मिनट्स, ऑब्जर्व, लर्न, लिख लो इस चीज को, लेट मी नो एक बार हो जाए तो। मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, अब भाई आपको हाईएस्ट कोएफिशिएंट चाहिए, तो भाई आपको मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा। मैंने बता दिया मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। अगर इवन होता है n, तो मिडिल टर्म होता है अपने पास t n+2/2, ये ऑड के लिए। अगर n इवन होता है तो t n+1/2 एंड t n+3/2। चलो, ये आप ट्राई करो। विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x? कौन सी टर्म में x का कोई वेरिएबल ही नहीं है? विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x? ऐसा होगा, सपोज करो यहाँ पर स्क्वायर, मान लो अगर मैं x² इंटू 1/3x² ऐसा करूं, तो आप ये समझ रहे हो ऊपर का x² नीचे का x² कट जाएगा, ये बोल रहे हैं। कौन सी टर्म में x नहीं आएगा? टेक योर टाइम, थोड़ा लगाओ अपना लॉजिक एलजेब्रा का, एलजेब्रा से बनेगा ये। कौन सा टर्म आएगा बताओ? विच टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x का कोई पावर ना हो? टेल मी विच टर्म विल दैट बी? तो इसे कैसे बनाए, देखो, मान लो वो टर्म जो है, वो टर्म r+1 है, मान लो। हमें कोएफिशिएंट नहीं निकालना, हमें x कैंसिल करना है। तो ऐसा देगा ना, 15c r दिखेगा। ये जो r है, ये r कहां पर आएगा? 2/3x की पावर r आए। और ये जो लिखा है x², इसकी पावर में क्या आ जाएगा? इसकी पावर में आ जाएगा यहाँ पे 15 - r। प्लस माइनस कुछ मत सोचो, आपका काम केवल टर्म निकालना है। कैन आई से जो x की पावर है यहाँ पर हो जाएगी 30 - 2r। ये 2/3 को साइड में कर दो आप।
ये कॉम्बिनेशन को साइड में कर दो, ये मेरा टेंशन है नहीं, मेरा काम है आर निकालना। नीचे क्या आ जाएगा, एक्स का पावर आर आ जाएगा। तो अगर इसको रीअरेंज करें, कभी आप डिवाइड करते हो दो नंबरों को एक्स के में पावर ए और बी को, तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, पावर माइनस होता है। दिस विल टर्न इनटू एक्स टू द पावर 30 माइनस 3r। अब मुझे इसको जीरो करना है, तो व्हाट इज आर, आर इज 10। मुझे एक्स का पावर चाहिए नहीं, आई वॉन्ट एक्स टू बी मिसिंग, आई वॉन्ट एक्स टू बी गॉन। इसको मैं जीरो कर दूंगा तो आर मस्ट बी 10। अगर आर 10 है तो टर्म कौन सा हो जाएगा, आर अगर 10 है तो टर्म 11 हो जाएगा आपका। तो 11th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो 11वीं टर्म है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। 11th term is independent of x. Moving on. वैसा ही सेम क्वेश्चन, इसमें भी कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है x के, y का कोई रोल नहीं बेटा, ये x का स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस y अपॉन x स्क्वायर ऐसा। विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये निकालना है आपको। ट्राई करो, टेक 1 मिनट। अभी अभी आपने अप्रोच देखा, हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, दूसरे कोई वेरिएबल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल निकालना है x का पावर 0 कब होगा, और 0 होगा भी कि नहीं होगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो लेट अस से वो टर्म r प्लस 1 है, कॉम्बिनेशन कैसे दिखेगा, 10cr। सेकेंड जो पार्ट है इसकी पावर r हो जाएगी, और जो फर्स्ट पार्ट है इसकी पावर हो जाएगी 10 माइनस r। आपको केवल x पे ध्यान देना है, बाकी सब छोड़ दो। तो पहली टर्म में हो जाएगी x की पावर 30 माइनस 3r, और डिनोमिनेटर में देखो x की पावर हो जाएगी 2r। व्हेन यू डिवाइड तो ये हो जाएगा x का पावर 30 माइनस 5r। क्यों, ये जब डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आपको इसको जीरो करना है, मेरे को x चाहिए ही नहीं उधर में, तो r विल बी इक्वल टू 6। अगर r 6 है, ये 6 है, तो टर्म तो 7 होगा ना, तो 7th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। 7वें टर्म में देयर इज नो वेरिएबल x। मूविंग ऑन, कंप्लीट कर लो, कंफर्म डन, देन विल मूव ऑन। ये थोड़े से एडवांस सवाल है,
ये Z में बड़े कॉमन रहे थे पहले. Let us hope they come back. What is the coefficient of x to the power 8? x की पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन थीटा होगा यूजुअली, और आंसर 3-3 डिजिट 4-4 डिजिट का हो सकता है. तो आपको कैलकुलेट करके टाइप करके सबमिट करना पड़ेगा अगर कैट में आता है तो. इफ यू सी सच अ क्वेश्चन इन कैट, you have to perform these whole calculations and submit your answer. सोचो कैसे बनाओगे. Take 2 minutes, give it a try. तो देखो, जब एक्सपेंशन आप करोगे तो वेरी गुड थिंग इज पहले ब्रैकेट में कोई बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं है. ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बन जाएगा. ये वाला एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बन जाएगा. ये वाला एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बन जाएगा. मुझे क्या चाहिए? एक्स का पावर 8 चाहिए. तो देखो, सामने एक कांस्टेंट नंबर है, तो अगर आपको पावर 8 चाहिए तो एक्स कहाँ है? सेकेंड पोजीशन पे है. तो ऐसा आएगा 10c8 एक्स का पावर 8, 1 का स्क्वायर, ये मिल गया एक्स का पावर 8. ऑलरेडी बाहर क्या रखा है? स्क्वायर. देखो, अगर बाहर स्क्वायर रखा है और आपने एक्स का पावर 6 लगाया, तब तो एक्स का पावर 8 होगा ना, ऐसा. तो मुझे अंदर से x का पावर 6 चाहिए. ये माइनस साइन बाहर रहेगा माइनस के फॉर्म में. बाकी कोई टर्म आई डोंट वांट. यहां से आएगा 10c6 x का पावर 6, और बाहर ऑलरेडी एक स्क्वायर रखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई होके पावर 8 बन जाएगा. प्लस ये क्यूब है, क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x का पावर 5, तो खुद ही क्या बन जाएगा? x का पावर 8 बन जाएगा. तो क्यूब ऑलरेडी बाहर है, तो मुझे क्या चाहिए? 10c5 x का पावर 5, ये मल्टीप्लाई होके पावर 8 बन जाएगा. व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और बीच वाला नेगेटिव है. तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा. 10c8 is like 10c2. 10c2 is 10 into 9 upon 2 into 1. तो पहली टर्म क्या है? 45. 10c5 क्या होगा? 10, 9, 8, 7, 6. 5 नंबर रिवर्स ऑर्डर में और 5 नंबर रिवर्स ऑर्डर में. 5 into 2, 10 cancelled, 4 cancelled 2 times, 3 cancelled 3 times. So 3 into 2, 6. 6 into 6, 36. 36 into 7, 252. अभी 10c6 क्या होगा? 10c4 के बराबर होगा. अभी 10c4 क्या होगा? 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. 4 into 2, 8 चला गया, ये 3 चला गया, तो हमारे पास आ गया -210. तो बड़ा ही छोटा सा आंसर आ रहा है हमारा. तो ये आ गया 42. 42 plus 45, 87. That is your answer. That is the term with coefficient having power 8.
मूविंग ऑन। ऐसे क्वेश्चन में आपसे कह रहा था नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये कैट में एक दो बार आ रखा है। सो टेक 2 मिनट्स। अब ऑप्शन तो कहीं नहीं, ऑल द क्वेश्चंस आर थीटा, तो पूरा कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। देयर आर 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। गिव इट अ ट्राई। और मैं कंप्लीट कर देता हूँ, डोंट वरी। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये मैंने सॉल्व करवाया आपको। इन 20 चीजों को कहाँ बांटना है? 3 जगहों में। 22C2, 22 into 21 upon 2 into 1 cancel 11, 231 फिनिश्ड। अभी हमें यहाँ पर थोड़ी अलग चीज है, हमें ये सब चाहिए। तो थोड़ा ना, आप कहीं से भी शुरू करो, आप ए से करो, बी से करो, सी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये वेरीफाई कर लो इनका एडिशन देखो 20 है कि नहीं, क्योंकि 20 को डिस्ट्रीब्यूट करना है पावर्स में। 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 हमारे पास है। तो मैं देखो, मैंने ए को अलग कर दिया, बी और सी को अलग कर दिया, ऐसा। मुझे ए की पावर चाहिए 12, तो क्या होगा? 20 कॉम्बिनेशन 12, ए की पावर 12 आ गई और बी और सी की कंबाइंड पावर 8 आ गई। अब इसमें ध्यान दो, बाकी पे आप छोड़ दो, ये आप इसको बाहर रहने दो, इसको बाहर आप रहने दो, इसको बाहर रहने दो, आप इस पे ध्यान दो। अभी इसमें सेकेंड वेरिएबल कौन सा है? सी। सी की क्या पावर चाहिए? स्क्वायर। तो 8 कॉम्बिनेशन 2, तो सी का स्क्वायर बन जाएगा और बी का पावर 6 बन जाएगा। तो इस टर्म का कोएफिशिएंट ये है। अब मैं इतना तो कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा आपसे, बट होपफुली अगर क्वेश्चन आता है कैट में तो पावर छोटी होगी, 20 की जगह में भी 12 पावर होगी, 15 पावर होगी, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। आपका जो आंसर है which is this 20C12 into 8C2, 20C12 into 8C2, that is your answer. Moving on. What is the sum of all the terms in the expansion? कभी भी कोएफिशिएंट्स का एक्सपेंशन निकालना है, एडिशन निकालना है, आप वेरिएबल्स को रिमूव कर दो 1 बना के, तो ये बन जाएगा 1 + 1 + 1 to the power 20, 3 to the power 20 is equal to sum of all coefficients. Sum of all coefficients is 3 to the power 20. तीनों सवाल बन गए, 2-2 स्टेप के क्वेश्चन हैं आपके। पहला था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमें 20 के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3 प्लेसेस। फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने सेकेंड वाले में? सिंपल एक्सपेंशन। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अलग अलग कर लो और पावर मैच करते चलो। लास्ट में क्या लगाया हमने? व्हाट इज द लास्ट वन? हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स चाहिए, तो हमने सबको 1 कर दिया।
इसमें कितने नेगेटिव टर्म्स होंगे। तो आप पावर 100 अगर आपसे नहीं बनता तो छोटा पावर रख लो। अगर x माइनस वाई स्क्वायर होता, अगर x माइनस वाई, क्योंकि ये इवन है तो मैं भी कोशिश करूंगा इवन ही रखूं मैं पावर को। ऐसा आपको पूरा एक्सपेंशन भी नहीं चाहिए, कोएफिशिएंट भी नहीं चाहिए। अगला माइनस होता, अगला फिर प्लस होता, अगला फिर माइनस होता, अगला फिर प्लस होता। देखो आपके पास 4 है, क्योंकि 4 है तो आपको दिख रहा है 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है। पावर 2 है तो कितने नेगेटिव है आपके पास 1। तो जो पावर है 4, तो यहाँ 2 नेगेटिव है विच इज हाफ। पावर 2 है तो एक ही नेगेटिव है, तो 100 में कितने नेगेटिव होंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर नेगेटिव इन द एक्सपेंशन, ये सवाल है। अगर पावर इवन है तो सीधे सीधे आधे। देखो अगर पावर 6 होती, x माइनस वाई का पावर 6 होता है, यहाँ पे पावर 6 आता, फिर माइनस, फिर प्लस आता, फिर माइनस आता। पावर्स पे आप ध्यान मत दो, आप केवल प्लस माइनस पे ध्यान दो। फिर प्लस आता, फिर माइनस, 7 आते टर्म, 7 में से आपके 4 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो इसका आधा करना है खाली आपको। पावर इवन है तो आधा कर दो, उतने आपके टर्म्स नेगेटिव है। वेरी इजी क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। x की पावर 4 में क्या कोएफिशिएंट होगा, x की पावर 4 में क्या कोएफिशिएंट होगा। ट्राई करो एक बार आप लोग, गिव इट अ ट्राई। बाइनोमियल आपने पढ़ा है, उसमें भी एक लेवल ऊपर है ये। देखो क्लिक करता है क्या। इसको मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया 1 माइनस एक्स, मैंने इसको सेकेंड टर्म मान लिया एक्स स्क्वायर, पावर में क्या है 5। तो एक एक करके एक्सपेंशन में पूरा करता हूं। पहले क्या आएगा 5c0, ये पहला टर्म है, इसको पूरा पावर 5 मिलेगा। फिर क्या आएगा 5c1, ये जो 1 है ये सेकेंड वाले का पावर है, एक्स स्क्वायर का भी पावर 1 है, और 1 माइनस एक्स का पावर 4 है। फिर क्या आएगा इसके बाद आएगा 5c2। अब ये जो 2 है ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिखा है 1 माइनस एक्स, इसका पावर हो जाएगा 3। अब आप पेन को रोक दो, क्यों, ऑलरेडी x का पावर कितना बन चुका है, x का पावर 4 बन चुका है। उससे आगे तो आप जा नहीं सकते, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि पावर 4 तक ही चाहिए, इसके आगे जाना भी नहीं है आपको। अब यहाँ ध्यान दो, पावर 4 इसमें से निकलना है, यहाँ पावर कितना है 5, तो मुझे चौथा टर्म चाहिए। 5c0 बाहर रहने दो, इसमें से मुझे चाहिए चौथा टर्म 5c4, क्योंकि ये इवन है, ये खुद ही पॉजिटिव बन जाएगा आगे। याद है माइनस में अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। अब ये ऑलरेडी स्क्वायर है, बाहर में ऑलरेडी स्क्वायर है, हमें पावर कितना चाहिए 4, अंदर से क्या निकलेगा स्क्वायर। ये 5c1 को रहने दो, डोंट चेंज दैट। अब जो ये 4 बचा है 4c2, तो x का पावर 2, ये इवन है तो सामने प्लस आएगा वैसे भी। अब ये तो स्क्वायर और बाहर एक और स्क्वायर रखा था ना, ये पावर 4 बन गया। अब यहाँ तो ऑलरेडी पावर 4 है तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, ये ऑलरेडी पावर 4 है, आई डोंट नीड एनी मोर टर्म्स हियर। तो आपका आंसर ऐसा दिखेगा, इट इज एडिशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स, ऐसा दिखेगा 5c0 5c4 which is 5 itself, 5c1 4c2 which is 5 into 6 30, 5c2 is 10। आपका आंसर आएगा 45 is the sum of these coefficients।
टेक योर टाइम, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, लिखो, वी विल मूव ऑन देन। बस दो चार ही क्वेश्चन बचे हैं बेस्ड ऑन बायनॉमियल, वी हैव सीन ऑल वेरिएशंस। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, कितने टोटल टर्म्स होंगे अगर आपने इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो आप अगर चाहो तो फिर से छोटे लेवल पे जाके एक्सपेरिमेंट कर लो। पावर क्या है, 200 है, 200 इज अ इवन नंबर। आप जब इसका एक्सपेंशन लिखते हो और इसका एक्सपेंशन लिखते हो तो क्या हो जाता है, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई मुझे ऐड करके दे देगा तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है। देयर आर हाउ मेनी टर्म्स हियर, 2 टर्म्स। आपको पावर 4 चाहिए, मान लो आपको पावर 4 पे चेक करना है। एक बार कंफर्म हो गया तो सारे आंसर आ गए। ये होता है एक्सपेंशन, एक्स की पावर 4 प्लस, मेरे को कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, एक्स की पावर कम करते जाओ, y की पावर बढ़ाते जाओ। मुझे आई डोंट केयर अबाउट द कोएफिशिएंट इटसेल्फ, माय जॉब इज टू जस्ट काउंट टर्म्स। यहाँ पे आ जाएगा x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब y1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4। अब अगर ये ऐड हो गया, पैटर्न अलग है बेटा, थोड़ा ध्यान देना। ये कट गया, ये कट गया, अभी आपके पास जाएगा ट्वाइस ऑफ। ट्वाइस ऑफ कितने टर्म्स हैं, ये बच जाएगा एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। पावर 4 में बेटा तीन टर्म्स है। इनफैक्ट ये मुझे क्लिक कर रहा है, आई एम एबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कि जो नेगेटिव वाले टर्म्स है वो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव टर्म्स कितने होंगे, अभी देखा था हमने, इसके अंदर में 100 नेगेटिव टर्म्स होंगे, याद है आपको। यहाँ पे देखो, सीखो इन चीजों को। यहाँ 100 था तो कितने नेगेटिव टर्म्स थे, 50। यहाँ 200 है तो 100 नेगेटिव टर्म्स हैं। टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स होंगे 201। इसमें 201 टर्म्स है, इसमें 201 टर्म्स है। इस 201 में से 100 नेगेटिव है, कितने बच गए आपके पास बेटा, 101 टर्म बचेंगे। इन द एडिशन ऑफ बोथ यू विल हैव 101 टर्म्स। मैं पहले क्या कोशिश कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू जनरलाइज इट फॉर यू, आई वाज ट्राइंग टू जनरलाइज इट फॉर यू कि एक n के फॉर्म में फॉर्मूला बन जाए। टोटल टर्म्स आर 201 टर्म्स। पहले वाले में 201 टर्म है, दूसरे वाले में 201 टर्म है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। तो अब देखो नेगेटिव वाले टर्म कटते जा रहे हैं ना, ये भी नेगेटिव वाले टर्म कटते जा रहे हैं बीच से, तो नेगेटिव टर्म सारे कट जाएंगे। नेगेटिव टर्म होंगे कितने, हाफ ऑफ देम विल बी नेगेटिव टर्म्स। तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन द एक्सपेंशन, 101 टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये तो हम कर चुके हैं, फॉर्मूला अपने पास। तो 50 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 जगह पे। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एफर्ट लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा विद कैलकुलेटर, वही सही। ट्वेंटी 17 आंसर आपका 53 इंटू 26 इंटू 17। बड़ा खतरनाक सा आंसर, बट ये है। कहा हजारों में टर्म्स चले गए, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। थ्योरी में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, मैंने दो एग्जाम्पल क्रिएट करके आपको एक्सप्लेन किया। अभी दो क्वेश्चंस भी बना लिए ऐसे, तो हो गया ना 6 एग्जाम्पल्स।
अभी एग्जाम में क्लिक करना चाहिए, एग्जाम में पता पड़ना चाहिए व्हाट इज बीइंग डन. कंप्लीट दिस, लेट मी नो. इसको मैंने अभी आपको करवाया ऑन अ स्मॉलर स्केल. एक स्मॉलर स्केल का देखो मैंने आपको करवाया ऐसा, हाउ टू फाइंड एक्सपेंशन व्हेन देयर आर 3 टर्म्स. कैट वाला भी यही करता है, वी पैनिक. अभी यहाँ पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 4 टर्म्स दिख रहे हैं. सबसे पहले क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है ये जो पावर है, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, ये 14 बनना चाहिए. अब लगाओ कॉमन सेंस, क्या सोचेंगे आप? दो दो के जोड़े बनाओ. आप ए और बी को एक तरफ कर दो और सी और डी को एक तरफ कर दो. ये मेरा वेरिएबल x है और ये मेरा वेरिएबल y है. दोनों को मिलाकर कितनी पावर है? हाउ मच पावर डू आई नीड? आई नीड 14 एज अ पावर. अब उस 14 में से देखो, इन दोनों को मिलाकर मुझे पावर 8 देनी है और इन दोनों को पावर 6 देनी है. तो कैसे आएगा? 14 कॉम्बिनेशन 8. इसमें x की पावर 6 आ जाएगी और y की पावर 8 आ जाएगी. ये चाहिए हमें. तो 14C8 को बाहर रखो अभी आप, डोंट वरी अबाउट दिस. अभी x क्या था? x was a plus b and what was y? y was c plus b. अभी आपको इसमें भी b का पावर 2 चाहिए. हमेशा सेकेंड वेरिएबल को पकड़ो, आपको b का पावर 2 चाहिए. तो 6c2, b का पावर 2, a का पावर 4. ये तो बाहर है, ये 14c8 तो है बाहर में, लीव इट देयर. अभी d का पावर आपको 5 चाहिए. 8 में से 5 पावर चाहिए, 8c5. तो you will have d का पावर 5 and c का पावर 3. तो आपका क्वेश्चन था फाइंड द कोएफिशिएंट. तो ये जो आ गया a का पावर 4, b का पावर 2, c का पावर 3, d का पावर 5. इनके सामने जो नंबर लगे हैं these are called coefficients. 4c8, 6c2 into 8c5. ये कैलकुलेट करके आपको टाइप करना पड़ेगा. ये बहुत बड़ा आंसर नहीं है. यू कैन डू दिस. वी हैव डन सच कैलकुलेशंस. कैन आई से 14c8 इज लाइक 14c6? क्या हो जाएगा? 14, 13, 12, 11, 10. 6 नंबर चाहिए. 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 अपॉन 6, 5, 4, 3, 2, 1. मैं अभी इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ. आई एम कैलकुलेटिंग दिस. तो ये चला गया 5 into 2 10 चला गया. 6 into 2 12 चला गया. 3 into 3 9 चला गया. यहां से ये जाएगा तो ये 2 और ये 7 हो जाएगा. व्हाट आई हैव इज 7 11 13. बेटा 7 11 13 होता है 1001 into 3. तो ये जो पहली वैल्यू है दैट इज 3003. अभी व्हाट इज 6 कॉम्बिनेशन 2? 6 into 5 upon 2 which is 15. What is 8 combination 5? 8 combination 5 is like 8 combination 3. So that is 56. तो आपका आंसर होगा 3003 into 15 into 56. थोड़ा एफर्ट लगेगा, यूज अ कैलकुलेटर. बाकी तो मैंने सारा कर दिया आपके लिए. कंप्लीट दिस, कमेंट डन. अब देखो बार बार सेम तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक लेवल ऐड हो जा रहा है. दिस इज व्हाट कैट डज एंड वी पैनिक इन द एग्जाम. पैनिक नहीं करना. तो ये एक नया लेवल है. आई विल गिव दिस टू यू एज एन होमवर्क.
ट्राई करो आप लोग, एफर्ट्स लगाओ। अब इसमें क्या खेल हो गया, अंदर दो दो जगह पर सी है, अभी तक क्या था, एक ही जगह पर सी था। इट वॉज वेरी इजी टू मैच। This is the homework. Done with probability and binomial. Now we will focus a little more on workshops. थोड़ा वर्कशॉप्स आपके लिए बढ़ाएंगे।